Should we start or wait for a couple of minutes? Last time few queries were raised on this illustration number 68. Hope you people have solved? Solve हो गया? कर लिए? Any question or should I take it on fast track basis? Huh? See, let's take it on fast track basis में explain कर देता हूँ. ये क्वेश्चन दो तीन लोगों ने इस पे क्वेरी पूछा था, तो ये क्वेश्चन को हम लोग पहले फास्ट ट्रैक अंडरस्टैंड कर लेते हैं. आई विल नॉट सॉल्व इट इन एक्सेल. एक्सेल में मैं कुछ सॉल्व करने वाला नहीं हूँ. लेट्स नॉट स्पेंड टाइम इन एक्सेल सॉल्विंग प्रॉब्लम इन डिटेल. नो नीड टू डू दैट. See what they are saying. See this type of problem we will be dealing in budgetary control in detail. Understanding वहाँ पे भी होने वाला है. Same problem है. Budgetary control budget के जब हम we will solve when we will be entering into techniques of costing ना. At that time we will be handling budget element. There are three topics in techniques of costing. One is budgetary control, second is standard costing, and third is marginal costing. In budgetary control, this kind of problem will be normal problems. यहाँ पे आपको difficult लगेगा. You might feel this problem is difficult in overheads, but this is a normal problem when we study after budgetary control, flexible budget and fixed budget. ठीक है? So let us quickly understand what they want to say in this area. Prepare a fixed budget overheads, flexible budget with 70 and 100%, calculate a departmental hourly rate for overhead absorption for A and B above. Budgeted activity is 5,000 hours. At 5,000 hours, what is the budgeted activity? 100% capacity level, 5,000 hours has been given. Okay? And they have given further information. Indirect wages, 0.40 per hour. Repairs, up to 2,000 hours for each additional 500 hours. So they have given slabs for cost that will be incurred. Rent and rates given. Power has been given, consumables, supervision, depreciation, cleaning, lighting and heating. All detailed information has been given. So let us prepare a flexible budget for 100% capacity, 70% capacity and 110% capacity. ठीक है? So in the books of करते हैं, in the books of somebody is writing message क्या? In the books of company, flexible budget, particulars, now they have given it three different levels: 70, 100 and 120. 70% capacity, 100% capacity, 120% capacity. 110 है क्या? ठीक है, 110% कैपेसिटी. ठीक है. नंबर ऑफ आवर्स कितना है? नंबर ऑफ आवर्स गिवन इंफॉर्मेशन एट 100% कैपेसिटी कितना है? 5,000 आवर्स. दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड ओवर हियर. 5,000 आवर्स हैज बीन गिवन. वी आर ऑन पेज नंबर 199, illustration number 68. which was given as an homework, but few queries have come. तो उस queries को understand करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. Nothing more than this. ठीक है. So number of hours at this is 5,000. Now when we say number of hours at 100% capacity is 5,000, what will be the number of hours for 70% capacity? So 100% के लिए अगर मेरे पास 5,000 hours है, तो 70% के लिए मेरे पास कितने hours है? So cross multiplication. 70 into 5,000 divided by 100. So कितना है? 3,500. Similarly
100% के लिए 5000 है तो 110% के लिए कितना? इट इज कमिंग टू 5500 आवर्स. सो दिस इज द hours information which has been given to which we derived out production element information जो है budgeted level activity number of hours in activity ठीक है. Now let's go one by one. Indirect wages 40 पैसे indirect wages. So अगर चाहे तो हम लोग ये कॉस्ट को फिक्स्ड एंड वेरिएबल भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट एंड सॉल्व एट टोटल लेवल. ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले. इनडायरेक्ट वेजेस कितना है पर आवर? 40 पैसे पर आवर है, बराबर ना? 40 पैसे पर आवर. सो 3500 इंटू 0.4. ओल्ड बुक पेज नंबर कितना है? हाँ, 214. ना 214 है ना 197 है. कितना है क्वेश्चन नंबर? ठीक है, ओके. सो दैट आई विल बी एबल टू रिफर इट इन अ प्रॉपर वे. Okay, so 0.40 into 3500 hours. Next, 5000 into 0.40, and this will be 5000 into 0.40. Done? Pakka? No issue. Second one. Now what second one is saying? Repairs. Now understand this repair in a proper way. What they are saying? अप टू 2000 आवर्स 100 रुपीज. सो हमारा पहला स्लैब पहले ये पकड़ते हैं 70% कैपेसिटी. अंडरस्टैंड इट. इट्स वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ जस्ट सिंपल मैथमेटिक है. अपने आवर्स कितने हैं यहाँ पे? 3500 आवर्स है फर्स्ट 70% कैपेसिटी पे. ओके, 70% कैपेसिटी. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अप टू 2000 आवर्स कितना रुपए खर्चा आएगा? अप टू 2000 आवर्स कितना है खर्चा? 100 रुपीज. ओके, अभी कितने बाकी है? अभी और 1500, बराबर ना? सो 3500 आवर्स है एट 70% कैपेसिटी. सो अप टू 2000 आवर्स दे आर सेइंग 100 रुपीज. फर्दर फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स अप टू 4000 आवर्स 35. सो एडिशनल कितना है अभी? ईच एडिशनल 500. कितने एडिशनल है अभी? 500 के कितने बाकी है? 3, बराबर ना? 3 बाकी है ना, क्योंकि 1500 बैलेंस है. बिकॉज आउट ऑफ 3500 अप टू 2000 इज 100. बैलेंस 3500 माइनस 2000 के कितने रह गए? 1000. और 1500 के 500 के बंच करेंगे तो कितने बनेंगे? 3 इंटू कितना है? 35. सो 3 इंटू 35. डन. 205 रुपया यहाँ पे आएगा खर्चा. अंडरस्टूड? यस और नो? ये नहीं समझ में आया कि क्या नहीं समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं समझा. 3500 आवर से पहले 70% कैपेसिटी पे एग्रीड है. सो रिपेयर्स का खर्चा कितना आ रहा है? व्हाट दे आर सेइंग, अप टू 2000 आवर्स 100 रुपया खर्चा. ठीक है. सो मेरे 3500 में से 2000 तक में अगर रिपेयरिंग आवर्स का काम करेगा तो आई विल इंकर 100 रुपीज एज एन एक्सपेंसेस. 2000 के ऊपर काम किया है कितना? 3500. तो कितना एक्स्ट्रा अभी और भी आवर्स कितने बाकी है? 1500. वो क्या बोल रहा है? फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स, एक 500 आवर्स का खर्चा अगर करते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा आता है? 35 रुपीज. सो 1500 डिवाइडेड बाय
500 कर देंगे तो 500 के कितने गुच्छे हो गए? 3। तो 3 500 के गुच्छे इंटू 35 रुपीज, 105 रुपये। गॉट इट? ओके। नाउ सेम 100% के लिए भी, 100% के लिए नाउ 100% कैपेसिटी के लिए आवर्स कितने हैं? 5000 आवर्स है, बराबर? यस और नो? सो अप टू 2000 आवर्स कितना है? 100 रुपीज। फ्रॉम 2000 टू 4000 देखो, फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स अप टू 4000 आवर्स, सो अप टू 4000 जाना है, ठीक है? सो कितने गुच्छे हो गए 500 के? 4। एग्रीड? यस और नो? सो 35 इंटू 4, सो अपने कितने आवर्स कवर हो गए? यहाँ पे 2000 आवर्स कवर हो गए, यहाँ पे 2000 आवर्स कवर हो गए। सो 1000 और भी बाकी है, और उसके आगे क्या दिया है? एडिशनल फ्रॉम 4000 टू 5000 60 रुपीज। सो अभी नेक्स्ट, सो यहाँ पे फॉर फर्स्ट 2000, फॉर नेक्स्ट 2000 आवर्स एंड लास्ट 1000 आवर्स। कितना है वो लास्ट 1000 आवर्स के लिए? 60 रुपीज। सो टोटल खर्चा कितना आएगा रिपेयर्स का? 300 रुपीज। टोटल रिपेयर्स एक्सपेंडिचर विल बी 300। गॉट इट? इस स्लैब का एप्लीकेशन है, इसमें मैं बोलूँ ना 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इसको एक्सप्लेन सॉल्व कर पाएगा, इतना इजी है। ओनली थिंग इज दैट आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, प्लस माइनस। ओके, एंड लास्ट वन इज हाउ मच? 5500। सो एट 110% कैपेसिटी कितना आवर्स है मेरा? 5500। सो यहाँ पे अप टू 2000 वाला फर्स्ट 2100, फ्रॉम नेक्स्ट 2000 आवर्स 4 इंटू 35, नेक्स्ट 1000 आवर्स, बराबर ना? नेक्स्ट 1000 आवर्स 60 रुपीज, एंड लास्ट क्या बोला है वो? अबाउ 5000 आवर्स 70 रुपीज। सो अभी अपना कि देखो, यहाँ पे 2000 गए, यहाँ पे 2000 आवर्स गए, यहाँ पे 2000 आवर्स गए, यहाँ पे 1000 आवर्स गए, लेकिन अपने कितने आवर्स कवर हो गए? 5000। यहाँ पे कितना है? 5000। सो लास्ट 500 अबाउ 5000 आवर्स कितना है? 70 रुपये, बराबर? सो टोटल एक्सपेंडिचर इज कमिंग टू 370 रुपीज। अंडरस्टूड? यस और नो? पक्का? Who has not understood? Online friends? Online friends understood? ठीक है। Next, after repairs, rent and rates. Fixed है 350. Rent and rates 350 fixed है, देखो they are saying 350 as a fixed. So whatever level it may be, capacity 350 350 350 कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाने का नहीं है उसको। डन? नेक्स्ट, पावर अप टू 3600 आवर्स, रेट इज 0.25। फॉर अबव 3600 आवर्स रेट इज 20। सो अपने पहला स्लैब कौन सा है? पावर। अभी लेते हैं इधर पावर। पावर का कितना आवर्स है अपना? 3500। सो विद इन फर्स्ट स्लैब है अप टू 3600 आवर्स, ये स्लैब में बैठेगा? यस और नो? ठीक है। सो कितने आवर्स है? 3500 नहीं 3500 इंटू 0.25, 875। अंडरस्टूड? दूसरा देखो, अभी ये वर्किंग कंप्लीट कर लेता हूँ। पावर का एट 100% कैपेसिटी, एट 100% कैपेसिटी कितना आवर्स है? 5000 आवर्स, बराबर ना? सो फॉर अप टू 3600 आवर्स क्या रेट है? 0.25। सो कितना आएगा? 3600 इंटू 0.25। एग्रीड? एंड अबाउ 3600 है ना? फॉर अबाउ 3600 दो ही स्लैब है। सो कितना आएगा अबाउ? फ्रॉम 3601 टू 5000 ना? यस और नो?
रेट बनेगा कितना 20, कितना आवर्स बनते हैं 5000 माइनस 3600, कितना आवर्स है 1400 आवर्स, बराबर ना, इंटू 0.20, so total is will come 1180. Who is not understanding this, offline friends? Done? And last one abhi 5500 for at 110% capacity, 5500 hours. So up to 3600 same rahega, from 3601 to 5500. So just we have to reduce 5500 minus 3000, so 1280 रुपए, 1280. Done? नेक्स्ट आफ्टर पावर क्या है, कंज्यूमेबल्स कितना है 24 पैसे पर आवर, सो सिंपल है कंज्यूमेबल्स 24 पैसे है ना, सो 3500 इंटू 0.24. नेक्स्ट 5000 इंटू 0.24 एंड लास्ट 5500 इंटू 0.24. Supervision up to 2500 hours 400, additional for each extra 600 hours, above 2500 up to 4900 100. तो ये स्लैब यहाँ पे पहले देखो, लेट्स डू इट इन डिफरेंट वे नाउ, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. स्लैब प्लॉट करते हैं. स्लैब क्या है, स्लैब बोलते हैं, व्हाट डज स्लैब इज, स्लैब फॉर सुपरविजन ना, सुपरविजन स्लैब up to 2000 आवर्स, बराबर ना, क्या 2500 है, अप टू 2500 आवर्स. कितना बोलता है ये, हाँ सर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड है, फर्स्ट अंडरस्टैंड कर ले, अंडरस्टैंड कर, स्लैब लिख लेते हैं. उसके आगे क्या बोलता है, फॉर एडिशनल ईच एक्स्ट्रा फ्रॉम 600 आवर्स अबाउट 2500 to 4900, फ्रॉम 2500 to 4900 आवर्स. कितना रेट है, 100 फॉर 600 आवर्स, ₹100 फॉर ईच 600 फॉर 600 आवर्स, 600 आवर्स, बराबर, एग्रीड. सेकेंड स्लैब लिख लिए. किसी ने म्यूट कर दिया मुझे. You are not audible, sir. Sir, you are on mute. अरे somebody muted me. ऐसे मत करो यार. Now is it audible? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने म्यूट कर दिया था मुझे. प्लीज. हाँ, फ्रॉम 4900, नेक्स्ट स्लैब क्या है, अबव 4900 आवर्स, अबव 4900 आवर्स कितना है, फिक्स्ड है 1. सर ते पावर आणि पॉवर जे आहे 100% कॅपॅसिटीसाठी 1180 आणि बुक्स मध्ये 1400 दिलेले आहे. पावर तो बहुत आगे चला गया यार. ओके, सो आप, अरे पावर का ठीक है बाद में सॉल्व करते हैं. मैं अभी पकड़ लिया, ट्रेन पकड़ लिया है तो उसको कंप्लीट करते ना पहले. ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से पावर में लेके जाए. जब पावर कर रहा था तब कहाँ थे आप लोग. टाइम पे क्वेश्चन पूछा करो यार. ठीक है, एनीवे नॉट एन इशू, आई विल टैकल योर क्वेश्चन ऑल्सो. अप टू 2500 आवर्स, हाउ मच इज द अमाउंट, 400. फ्रॉम 2400 to 4900, ₹100 for each 600 hours.
for each 600 hours. So जैसे 500 का गुच्छा था, ये यहाँ से 600 का गुच्छा है. And above 4,900 fixed है 150. Now 70% capacity कितना hours है? 3,500. So for up to 2,500 hours कितना है? 400 रुपये. Done? ले लिया. From 2,500 to 3,500 बराबर है. 2,500 to 3,500 कितने गुच्छे बनते हैं अपने 600 के? एक कैसे बनेगा? हाँ तो एक ही बनेगा, दो बनेगा ना? नहीं 600 के है ना, तो इन 600 के ऊपर एक भी गया तो भी दूसरा गुच्छा बनेगा ना. कंप्लीट नहीं हुआ तो कंपनी का लॉस है फिर. दैट इज दे हैव टू मैनेज. ठीक है. सो कितने गुच्छे, कितने आवर्स बाकी है? 2,000 आवर्स बाकी है. 1,000 आवर्स है. 1,000 आवर्स है ना. फ्रॉम 2,500 टू 3,500 बराबर ना है. तो 1,000 आवर्स है और गुच्छा कितने का है? 600 का. सो 2 एलिमेंट्स विल बी देयर. 600 का एक, 400 का एक. सो 2 एलिमेंट्स, 2 इंटू कितना है? 100 रुपीज. 200 रुपये बनता है. ठीक है. सो कितना हो गया अपना? 600 रुपये. सो क्या ये कॉस्ट रेट का नाम? सुपरविजन ना. सुपरविजन यहाँ पे आता है 600 रुपीज. यहाँ पे आता है 600 रुपीज. यहाँ पे 600 रुपीज आता है. डन. नाउ एट दिस कैपेसिटी लेवल, सो एट 100% कैपेसिटी कितने आवर्स है? 5,000 आवर्स है. 5,000 आवर्स है. ठीक है. सो अप टू 2,500 फिक्स है. फ्रॉम 2,500 टू 3,900 4,900 ना बराबर ना. 2,500 टू 4,900 कितना है? 100 फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर्स. सो कितने आवर्स बचते हैं यहाँ पे? देखो 4,900 माइनस 2,500 कितना बचते हैं? 2,000. 600 के कितने गुच्छे बनेंगे? 4. सो 4 इंटू 100 रुपये 400 रुपीज बराबर. यस और नो. एंड अबाउ 4,900 आवर्स कितना है? फिक्स्ड है ना. 150 फिक्स्ड है. सो हाउ मच विल कम? 950. डन. पक्का? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ना कुछ? हाँ, तो फिर बोलो ना. नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये अब तक जितना भी हुआ सारे स्लैब इसी तरीके से था, कुछ अलग था ही नहीं. नेक्स्ट कितना है? 5,500 आवर्स है. ठीक है. सो लेट्स गो टू 5,500 आवर्स. अप टू 2,500 आवर्स कितना है? 400 स्लैब. फ्रॉम 2,500 टू 4,900 400 रुपये. एंड अबव 4,900 आवर्स 150. सो टोटल कितना बनता है? 950. खत्म. डन. ये होमवर्क के लिए दिया था. प्लीज आप घर पे ट्राई नहीं करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम होगा. प्लीज ट्राई. जिनको नहीं जमा ये आप पे आके क्वेश्चन पूछते हैं और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है फिर आप लोगों का. घर पे अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कैसा होगा फिर. ओके. नेक्स्ट आफ्टर सुपरविजन डेप्रिसिएशन. कितना बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन का स्लैब? अप टू 5,000 आवर्स 650. अबव 5,000 आवर्स अप टू 6,500 820. सो अप टू 5,000 आवर्स है. अपना पहला स्लैब कितने का है? 3,500 का. तो इधर क्या यहाँ पे कितना आएगा? 650. दूसरा कितना है? ये भी 650. एंड यहाँ पे आएगा 820. अबाउ 5,000 है ना वो 820.
नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद क्या है? क्लीनिंग. क्लीनिंग व्हाट दे आर सेइंग अप टू 4000 आवर्स 60 रुपीज. सो पहला तो अपना 3500 आवर्स है तो 60 रुपीज आ गए बराबर. दूसरा अबव 4000 आवर्स 80. तो यहाँ पे अबव 4000 आवर्स है, यहाँ पे 80 आएगा. यहाँ पे अबव 400 आवर्स है, 4000 आवर्स है, 80 आ जाएगा. डन. एंड लास्ट एलिमेंट, लास्ट ही है ना, हीटिंग एंड लाइटिंग. फ्रॉम 2100 आवर्स टू 3500 आवर्स 120. तो अपना कौन सा कैटेगरी में आता है? लाइटिंग. ये 3500 में बैठेगा, 120 आ जाएगा इधर बराबर. फ्रॉम 3500 टू 5000 यहाँ पे 150. अपना 5000 है, यहाँ पे 150 आ जाएगा. एंड लास्ट कैटेगरी वाला है अबव 5000 आवर्स 175. खत्म. और कोई कॉस्ट हेड है क्या? नहीं. सो टोटल कॉस्ट per hour rate 5100 divided by 3500, 6860 divided by 5000 and 7545 divided by 5000. So per hour rate भी हमारा डिराइव हो गया. What was difficult into this? स्लैब का अंडरस्टैंडिंग अभी वो एकदम मैथमेटिकल है. 10th स्टैंडर्ड का अंडरस्टैंडिंग है स्लैब्स का. उसके ऊपर एक यूनिट भी बनेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट बनता है. बैच कॉस्टिंग किया ना? बैच कॉस्टिंग नहीं किया? एक बैच बनता है. 400 आवर्स का एक बैच था, 600 आवर्स का एक बैच था. दूसरा बैच बनेगा, उसमें 2 आवर्स भी किया तो भी दूसरा 2 बैच है. वो 2 बैचेस. तो उसमें 2 आवर्स रहे या 600 आवर्स रहे या 550 रहे, दैट विल बी द 2 बैचेस. या 1 आवर रहे, दैट विल बी द सेकेंड बैच. ओके, सो दिस वाज द होमवर्क which was given to you guys. You faced some problem, hence it was solved over here. Now moving towards next topic. Very interesting topics are starting now. चलो छोड़ दो. बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिया. कॉस्ट बुक कीपिंग का एक एलिमेंट है, लास्ट में लेते हैं. इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. नाउ एंटरिंग इनटू सेक्शन बी. सी आज डेट क्या है? 12th March. So as per our calculation we are going in a proper way. So March end तक, sorry, last week of April as per our मेरा जो पूरा शेड्यूल प्रिपेयर्ड है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में अपना मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा. एंड फिर मई एंड लास्ट वीक थोड़ा अप्रैल के लास्ट 1-2 लेक्चर्स पूरा में टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग खत्म सिलेबस. Cost bookkeeping. Yes madam, you are saying something. Cost bookkeeping कधी मग? हाँ, कॉस्ट बुक कीपिंग भी होगा. टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के बाद कॉस्ट बुक कीपिंग होगा. Okay. ठीक है. नाउ इन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सी इन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सो व्हाट इज आवर इंटेंशन. हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टडी किया था, कॉस्ट शीट स्टडी किया ना. तो उसमें क्या स्टडी किया था हमने कॉस्ट शीट में? हाउ द कॉस्ट शीट इज बीइंग डिराइव्ड. यस नहीं, हाउ द कॉस्ट शीट इज बीइंग डिराइव्ड. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. बराबर, इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. टू दिस व्हाट वी ऐड? factory overheads. What we get? Works cost or factory cost or
production cost. Add office overheads. We get cost of production. Add selling and distribution overheads. We get total cost or cost of sales, to which we add profit. We get sales, right? So this is how we studied the method statement of cost. Now this statement of cost has to be prepared for each and every product which is being manufactured or each and every services which is being provided, right? How to derive this? How to derive this? So every industry will have different issues, different problems, different way of approach of solving or understanding or deriving the cost of the product, rather than say, I will say deriving the cost of the product. So if you go in IT industry का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और एक सर्विस का कॉस्ट डिराइव करने का टेक्निक अलग रहेगा, वे अलग रहेगा, टेक्निक नहीं, वे अलग रहेगा. If you go in manufacturing industry, it will be something different. Same way, if you go in manufacturing process industry, chemical industry में जाओगे, अलग तरीका रहेगा. फार्मास्यूटिकल में जाओगे, अलग तरीका रहेगा, बराबर ना? अभी फार्मास्यूटिकल में जाओगे, हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं, कौन सा? पैरासिटामोल का या कफ का एक बोतल. तो हम लोग ऐसे थोड़ी बनेंगे, कफ का एक बोतल बना लिया, अभी दूसरा बोतल पैरासिटामोल बनाओ, तीसरा बोतल और कोई दवा, ऐसे नहीं बनेगा ना. सो ईच इंडस्ट्री विल हैव इट्स ओन यूनिकनेस in which we have to derive the statement of cost. Tomorrow, after becoming cost accountant, you may go in manufacturing industry, you may go in automobile industry, aeronautics, or service industry, or IT industry, or transport industry. और प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब लोग आपके पास आएगा, हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दो. तो आप ऐसा नहीं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए जो टेक्निक यूज किया, जो मेथड यूज किया, सेम यू विल यूज फॉर IT, गलत जाएगा ना. सो वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूजफुल टू द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज. सो जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, उसको दो टुकड़ों में बांटा है. प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, दो है एलिमेंट. एक प्रोसेस कॉस्टिंग उसी का पार्ट है, उसी का छोटा भाई है, लेकिन है सॉल्यूशन के लिए बड़ा. एंड लास्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, होटल, हेल्थ केयर, कहीं पे. अभी जस्ट इमेजिन, हम लोग होटल में जाते हैं, एक होटल में गए, खाना खा लिया, डिस्कनेक्टेड नहीं ना, कुछ नहीं हुआ ना, बच गए ना, कुछ समथिंग हैज हैपेंड. बट ऑनलाइन फ्रेंड्स, माय वॉइस इज ऑडिबल ना? Yes, sir. ओके. Audible. Yes, sir. अभी आज स्क्रीन भी अच्छा दिख रहा है? हाँ sir, better than that day. नहीं, उन्होंने शायद कुछ करेक्टिव एक्शन लिया है कि मुझे यहाँ पे दिखता है स्क्रीन इज, मतलब कनेक्टिविटी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे. सो दे माइट हैव एडेड द राउटर ओवर हियर. ठीक है, एनीवे गुड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप होटल में गए, ठीक है, होटल में गए, खाना खा लिया, तो एक प्लेट का खर्चा कितना आता है वो कैसे डिसाइड होगा? She is having some query. नहीं, आपके पास क्वेरी कंप्लीट? एनी क्वेरी? नहीं, होटल का नाम पूछ रहे थे शायद. ठीक है, एनीवे. सो हाउ इट इज बीइंग डिसाइडेड कि ये प्लेट का रेट इतना लगाना है? If you go in a normal hotel, rate will be different. Same plate if you go in 5-star hotel, rate will be different. How it is being derived? Costing ही करना पड़ता है ना उसका, बराबर ना? उसका कॉस्टिंग कर नहीं करेंगे तो रेट, होटल का धंधा बंद कर देंगे, बंद करना पड़ेगा. 100 रुपए का प्लेट हम लोग 70 रुपए में बेचने लगेंगे. क्यों? कॉस्टिंग ही प्रॉपर नहीं किया. चलो बेचते, सामने वाला बेचता है, ढाबे वाला बेचता है 60 रुपए में, हम 70 में, ढाबे वाला 80 रुपए में बेचता है, हम 60 में बेचेंगे. होटल का धंधा बंद. तो कॉस्टिंग करना पड़ेगा ना. सेकेंड एग्जाम्पल,
यहाँ से आप निकले, चिंचोड़ से निकले, पुणे जाना है, बस में बैठ गए, टिकट निकाला, 20 कितना 30 रुपए का टिकट। कौन डिसाइड करता है ये 30 रुपए का टिकट लेना है? आप बोलो मत, अभी पीसीएमसी वाला, पीएमटी वाला डिसाइड करता है। पीएमटी में कोई तो बंदा बैठा है, वो इज डूइंग कॉस्टिंग पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, पर टन, जो वर्किंग करता है, तब जाके ये डिरेवेशन होता है कि चलो इसका रेट 1 किलोमीटर पर पैसेंजर पर किलोमीटर का रेट इतना है, सो कितने लोग आए, कितने जाते हैं, ये उसका पूरा वर्किंग होता है बैकग्राउंड। हु इज डूइंग दैट वर्किंग? दैट कॉस्ट अकाउंटेंट आर डूइंग दैट वर्किंग। ठीक है, डॉक्टर के पास गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, बड़े हॉस्पिटल में गए, एक बेड का एक रूम ले लिया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। वो बेड का चार्जेस कैसे डिसाइड होता है कि आज ये बेड का, आज मतलब ये पीरियड में बेड का चार्जेस इज रुपीज सो एंड सो, रूम चार्जेस इज रुपीज सो एंड सो, वो पूरा उनका कॉस्टिंग करते होगे ना? यस और नो? अभी होटल में जाओगे तो वेटर का खर्चा रिकवर करना पड़ेगा, मैनेजर के खर्चे रिकवर करने पड़ेंगे, क्लीनर, शेफ, ये सब लोगों का खर्चा रिकवर करना पड़ेगा ना, टोटल कॉस्ट डिराइव कर, तब जाके आपको, और वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल आ गए, वेजिटेबल्स, सर्विस, एवरीथिंग। सेम वे ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन, ऑयल, फ्यूल, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, गैरेज का रेंट, रेट्स, एवरीथिंग हैज टू बी रिकवर्ड। हाउ इट इज बीइंग डिराइव्ड? It is derived by applying proper method of costing in that industry. अगर हम लोग गए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और वहाँ पे हमने जॉब कॉस्टिंग का टेक्निक यूज कर दिया, एक गोली बनाने के लिए कितना खर्च आता है, वो खत्म हो गया, लाइफ खत्म हुआ अकाउंटेंट की, गोली का कॉस्टिंग ही करता बैठे। इसलिए डिफरेंट इंडस्ट्री में जाओगे तो डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करना है। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करना है तो आपको ये पूरा मेथड ऑफ कॉस्टिंग डालना सीखना होगा। नहीं तो आप जाओगे, टुमारो यू गो इन अशोका बिल्डकॉन, मालूम है अशोका बिल्डकॉन? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रिजेस ये कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, वहाँ पे जाओगे और आपको बोला चलो ये ब्रिज का आजू बाजू से हम लोग जाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका कॉस्टिंग करो, आप क्या बोलेंगे? हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑप्शन में डाला है। नहीं कर सकते ना, आफ्टर बिकमिंग कॉस्ट अकाउंटेंट यू कैनॉट से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाज एन ऑप्शन। सो ये ब्रिज का कॉस्टिंग करना है, रोड का कॉस्टिंग करना है, इसके लिए भी कुछ है। सो ईच मेथड of costing has its own uniqueness, and after all, anyway, you apply any method, which 3 element of cost has to be studied? Apply कौन से 3 element of cost करना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आणि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ये 3 ही करना है ना। दुनिया में कहीं पे जाओ, आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो लेबर कंटेंट विल बी हायर, एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी हायर। मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, मटेरियल कंटेंट विल बी हायर। ट्रांसपोर्टेशन में जाओ, रनिंग एंड मेंटेनेंस कंटेंट विल बी हायर। होटल इंडस्ट्री में जाओ, डिपेंड करता है कौन से होटल में जाओगे, दैट एलिमेंट कॉस्ट विल बी हायर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ वन बाय वन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दुनिया में कहीं पे भी जाओ भाई, कॉस्टिंग अगर करना है तो 3 ही एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसको टुकड़े करो, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वही लेके हम लोग जॉब कॉस्टिंग करेंगे, बैच कॉस्टिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे। बट ऐसा नहीं कि अरे इतना आसान है 3, हर एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग विल हैव इट्स ओन यूनिकनेस। ठीक है, कहाँ है हम लोग? एनी क्वेश्चन टिल हियर? ऑनलाइन फ्रेंड्स, इफ माय वॉइस इज ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। हाँ, देखो, इन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मीन्स जॉब कॉस्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जॉब कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है, ये अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग। एक स्पेसिफिक जॉब है, एक स्पेसिफिक जॉब का कॉस्टिंग अगर करना है, फॉर एग्जांपल आप
फैब्रिकेटर्स के पास गए, फैब्रिकेटर मालूम है ना, फैब्रिकेशन करने वाला मालूम नहीं है, मालूम है ना फैब्रिकेटर, आपने उसको बोला मेरे को एक डोर बनाना है, घर के लिए डोर बनाना है, तो तुम्हारे घर के लिए डोर बनाओगे अलग रहेगा, ये इसके लिए घर के लिए डोर बनेगा ये अलग रहेगा, सेम रहेगा क्या? सो ईच जॉब इज डिफरेंट, सो ईच जॉब का अलग अलग कॉस्टिंग करना पड़ेगा। सो तुमने जो डोर बनाने के लिए बोला था उसके लिए मटेरियल अलग लगेगा, लेबर अलग लगेगा, ओवरहेड्स अलग लगेगा। तुम्हारा 6x10 का डोर था और इसका 10x20 का डोर है, तो मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड अलग, साइज अलग, डिजाइन अलग, एवरीथिंग इज डिफरेंट डिफरेंट। सो ईच जॉब इज डिफरेंट। नाउ फॉर ईच जॉब और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सबके पास बाइक है पक्का? आप बाइक सर्विसिंग के लिए देते हो? नहीं, वो घर वाले देते हो ना सर्विसिंग के लिए। वो क्या मानता है पहले? हाँ, जैसे ही जाते हैं हम लोग बाइक सर्विसिंग के लिए, आप गलत बोल रहे हो कि हम जाते हैं गाड़ी से, वो पहले एक डॉक्यूमेंट बनाता है, क्या बोलते हो जो डॉक्यूमेंट को? जॉब कार्ड। जॉब कार्ड क्यों बनाता है वो? स्पेसिफिक कॉस्टिंग करना है, वो तुम्हारा सर्विस एक सर्विस का कॉस्ट, वो अगर सबका कॉमन करेगा सबको सेम बिलाया जाएगा, किसी का ये खर्चा उसी का मतलब बनेगा क्या? व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू कलेक्ट द एक्सपेंसेस ऑन दैट स्पेसिफिक जॉब। इसलिए इसके होंडा का बाइक था, जॉब कार्ड बन गया, सर्विसिंग किया, लास्ट 5 साल में इसने सर्विसिंग नहीं किया था, इसलिए इसको ज़्यादा खर्चा आएगा। उसका ये चेंज किया, वो चेंज किया, एक्सवाइज मटेरियल चेंज किया, इतना लेबर चार्जेस, इतना ओवरहेड, 20,000 रुपये का बिल दे दिया। ये एवरी ईयर करता है तो इसका मटेरियल कम लगेगा, लेबर कम, वैसे उस हिसाब से खर्चा आएगा। अंडरस्टूड नाउ? जॉब कॉस्टिंग। सो वी विल स्टार्ट विथ जॉब कॉस्टिंग। थ्योरी में सब बता दूंगा लेकिन आप बाउंसर हो जाएगा, एक ही करते हैं। सो इन जॉब कॉस्टिंग व्हाट इज देयर? ईच जॉब मेंटेन इट सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे रहे हो, ईच व्हीकल इज डिफरेंट, उसका कॉस्टिंग डिफरेंट किया जाएगा। जॉब इज मेंट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर इज डिफरेंट, ईच जॉब इज डिफरेंट। प्रोडक्शन पैटर्न इज नॉट रिपीटेटिव, ऑब्वियसली प्रोडक्शन पैटर्न विल ऑल्सो बी नॉट बी रिपीटेटिव। ठीक है, ना ये जॉब कार्ड बनता है तो देखो ये मटेरियल कितना लगा, वेजेस कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सेम है, एवरीथिंग इज सेम, कुछ अलग सा नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ कमिंग टू इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 302। ओल्ड बुक कितना है पेज नंबर? पेज नंबर 305। एक पेज पे 305 है, एक पेज पे 302 है, और एक दो ही है ना, 302 और 305। 300 भी है क्या? ठीक है, 300 भी है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? थियोरेटिकल पार्ट जो मैंने बताया यही है, आगे चल के डिटेल में। एनी क्वेश्चन टिल हियर? पक्का? शुड वी मूव अहेड? ऑनलाइन फ्रेंड्स, शुड वी मूव अहेड? Yes, sir. देखो अभी आज आवाज भी अच्छा आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। आई थिंक ऑनलाइन फ्रेंड्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेट्स नाउ एंजॉय द सेशंस। जिनका कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स जिनका कुछ थोड़ा बहुत मिस हो गया, कुछ अंडरस्टैंडिंग का इशू था लास्ट लेक्चर बिकॉज ऑफ नेट कनेक्टिविटी इशू, प्लीज नोट दो पॉइंट एट वन प्लेस। हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मे भी 1-2 लेक्चर वी विल स्पेंड ओवर देयर। अब डोंट गेट बॉदर्ड कि हमने बहुत कुछ कर लिया, आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी बाय दैट वे। ठीक है। As a newly appointed cost accountant, you find that selling price of job number 9669 has been calculated on following basis.
Material direct wages 22 hours at 25 paise per hour. Department A 10 hours, B 4 hours, 8 hours. Prime cost plus 33% of prime cost and total cost बना दिया 23.44. An analysis of previous year's profit and loss account shows the following: direct material use, direct wages ABC, factory overhead ABC, selling cost 30,000. You are required to calculate and enter the revised costs using the previous year figures as a basis. Drop the job cost sheet, add to the total job cost 10% profit on given and give the final selling price. So ये यहाँ इसके नीचे वाला तो 2 मिनट के लिए बोल जाओ. What defect you find over here? नए कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए? आपको क्या डिफेक्ट लग गया? Somebody who is not a cost accountant, he has done this costing और ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दे दिया 23.44 रुपीज. ऐसा अगर कॉस्टिंग करेगा तो कंपनी का दिवाला निकलने में टाइम नहीं लगेगा. बराबर ना? बराबर ना? सो मटेरियल लेबर एंड प्राइम कॉस्ट पे 33% लगा दिया. मैटर क्लोज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या है, कैसे डिराइव किया, कुछ लेना देना नहीं. हम लोग जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो टेकिंग प्रीवियस ईयर्स एज अ बेस, लेट अस कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 966 विच विल बी करेक्ट कॉस्टिंग. ठीक है. सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर प्रीवियस ईयर. पहले प्रीवियस ईयर का बेस बना लेंगे. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. चलो शुड वी स्टार्ट? ओके. नाउ प्रीवियस ईयर में क्या है? मटेरियल यूज कितना है? 77,500. मटेरियल 77,500. वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी. इनर कॉलम में 5,000, 6,000, 4,000. 5,000, 6,000, 4,000. कितना है? 15,000. This we will get prime cost. Prime cost. This we will get prime cost. Add factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स भी डिपार्टमेंट वाइज है. बराबर ना? फैक्ट्री ओवरहेड ए बी सी 2,500, बी 4,000, 1,000, 4,000, 1,000. बाहर कितना जाएगा टोटल? 4, 5, 6, हाँ 7,500, 6,000, 7,500. We will get cost of production. Cost of production. कितना आएगा cost of production? 1 लाख. बराबर. Add administrative overheads है क्या कुछ? Nothing. Office overheads कुछ नहीं है. लेना लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो. मैं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा. फैक्ट्री कॉस्ट. हाँ ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं था. ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अगेन 1 लाख. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है? 30,000. सेलिंग कॉस्ट 30,000. टोटल कॉस्ट. सो हमने टोटल कॉस्ट बना लिया 1,30,000. एनी क्वेश्चन टिल हियर? ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन टिल हियर?
टोटल कॉस्ट तक कोई क्वेरी? Understood, sir. नाउ बेसिस दिस उन्होंने क्या बोला है, सी कैलकुलेट द एंड एंटर द रिवाइज कॉस्ट शीट यूजिंग प्रीवियस फिगर्स एज अ बेसिस. सो ये जो कॉस्ट शीट बना के रखा है जॉब नंबर 9669 का, वो गलत है. 9669 का कॉस्ट इज रॉन्ग. दैट इज द रीजन ये प्रीवियस ईयर का बेस लेके लेट्स ड्रॉ अ जॉब कॉस्ट शीट. ठीक है. सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जॉब नंबर क्या है? 966 ना, कितना है? 9669. चलो बना दो. दो कॉलम करो चाहे तो, इनर आउटर, सो दैट अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आसानी जाएगा. चलो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? डायरेक्ट मटेरियल सी 77,500. ये जॉब नंबर का बात कर रहे हैं ना 966, ये तो लास्ट P&L है, उसको बना के रखा है अभी, फिर उसमें क्यों जाने का? जॉब स्पेसिफिकली वी हैव रिटन जॉब नंबर 9669, सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर ना. मटेरियल यस सर बोल के नहीं चलता है, दिमाग भी लगाओ. यस सर. डायरेक्ट मटेरियल हो गया. आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस. कितना है डायरेक्ट वेजेस? सी देयर आर 3 डिपार्टमेंट A, B एंड C. डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B एंड डिपार्टमेंट C. कितना आवर्स है डिपार्टमेंट A में? 10 आवर्स. बराबर 10 आवर्स एट द रेट इनटू कितना रेट पर आवर है? देखो 22 आवर्स एट द रेट 25 पैसे पर आवर. सो 22 आवर्स कैसे बने हैं? 10 + 4 + 8 कितना होता है? डायरेक्ट वेजेस 22 आवर्स एट द रेट 25 पैसे पर आवर. सो डिपार्टमेंट ए में 10 आवर्स एट द रेट 25 पैसे, एट द रेट 25 रुपीज 0.25. सो कितना आएगा आउटर कॉलम में? 10 × 0.25. इनर कॉलम में 2 रुपये 50 पैसा. दूसरा कितना आवर्स है? हाँ 4 आवर्स इंटू रुपीज 0.25. ₹1. एंड सी वाला कितना है? 8 आवर्स. 8 आवर्स इंटू 0.25. 8 × 0.25. सो कितना आता है मटेरियल का? बाहर मटेरियल का डायरेक्ट वेजेस 5.5. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं. सो वी गॉट प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट कितना है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 17.58. एग्रीड? यस. लास्ट एनी क्वेश्चन? सर या सर आप ये अमाउंट निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? सर ये अमाउंट निकाल रहे हो आप 1 रुपीज, ये कैसे आया? कौन सा? ये वाला 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज. हाँ ओके. देखो ये कितना 10 आवर्स काम किया डिपार्टमेंट ए में, और रेट पर आवर इज हाउ मच? 25 पैसे पर आवर. सो 10 आवर्स, ये यहाँ पे लिखा भी है ना मैंने, रुपीज 10 आवर्स इंटू 0.25, दूसरा 4 आवर्स इंटू 0.25, और तीसरा 8 आवर्स इंटू 0.25, 5.5. अंडरस्टूड?
सर इंटू कर रहे हो तो 1 कैसे आ रहा है? इनका सर इंटू कर रहे हो ना 10 से 25 इंटू। हाँ 0.25 है मैडम, 25 नहीं है वो, 25 पैसा है, 25 रुपए नहीं। ओके सर ओके। हाँ तो इसलिए 0.25 किया ना, रुपीज 0.25 मतलब पैसे ही होते हैं। इसको मैं रुपीज 0.25 करूँ नहीं तो 25 पैसे करूँ, कौन सा आसान जाता है बोलो? 0.25। कौन सा आसान जाता है? और 10 आवर्स इंटू 25 पैसे या 4 आवर्स 10 आवर्स इंटू रुपीज 0.25, कौन सा आसान जाएगा? 0.25। हाँ चल गुड, थैंक यू। सो अंडरस्टूड ना? न तो वो बोल रहे होगे अरे 10 इंटू 25 250 आना चाहिए, 2.5 कहाँ से आ रहा है? ओके सो ये छोटा मिस्टेक होता है, ये छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एंड मार्क्स आते हैं। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपर्ट हो गए अभी। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी इतने आवर्स है, रेट पर आवर अभी हम लोगों को फाइंड करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट basis previous year. Working note number 1, computation of factory overheads rate for job number, factory overhead rate basis previous years. Particulars, department A, department B, ABC, A, B and C। 3 डिपार्टमेंट है ना, 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट रहेगा कि नहीं? कौन सा रेट हम ओवरहेड्स के कौन से रेट यूज करते हैं मोस्टली? ओवरहेड्स के कौन से रेट यूज करते हैं मोस्टली? Sir, variable, fixed and semi-variable. हाँ अरे लास्ट लेक्चर में हो गए, ये लेक्चर तो भूल गए आप लोग तो। इट क्लियरली शोज यू पीपल आर नॉट सीरियस व्हेन यू आर स्टडिंग। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से यू। अगर आपका स्टडी रिवीजन कंटिन्यूसली करते नहीं हो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्लीज, जैसे मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स आना चाहिए, आंखें बंद करके कम से कम 4 मेथड तो बोलना चाहिए। ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर रेट एंड लेबर आवर रेट। कम से कम ये 4 तो पक्के हैं। चारों में से कौन सा एक अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, चारों में से कौन सा एक अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे उन्होंने दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पे उन्होंने वेजेस भी दिया है। 2 methods can be applied over here. 2 methods. Which 2 methods? Overheads as a percentage of direct wages. Agreed? Because direct correlation है, आपको कोई wrong नहीं साबित करेगा। Nobody will make you wrong. Overheads as a percentage of direct wages लेना है, अप्लाई करना है, मैटर क्लोज। That is one. Second, यहाँ पे और एक अप्लाई कर सकते हैं, लेबर आवर रेट। Why? Because per hour एंड आवर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आवर्स इंफॉर्मेशन इज देयर, इसलिए वी कैन वर्क आउट लेबर आर रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर रेट। सो कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट बेसिस प्रीवियस ईयर, मेथड लेबर आर रेट, लेबर आर रेट। आप दोनों भी जा सकते हो, नोबडी विल मेक यू रॉन्ग। हमने स्पेसिफिकली बोला है 2, 3, 4 मेथड है। सो प्लीज आई एम वंस अगेन टेलिंग यू, ये बीकॉम का स्टडी नहीं है,
You will be wasting your time if you don't study each and every topic at that moment only. आप ओनली पढ़ाई करने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आने वाले. Study as it is tomorrow is your exam. Practice as it is you are writing in examination hall. Use calculator as it is you are in examination hall. जब हम घर का माहौल एग्जामिनेशन हॉल का करेंगे तभी जाके एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी डिविएशन नहीं रहेगा. Many people we have studied standard costing. वरांस रहता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में वरांस रहता है. जितना कम से कम वरांस रहेगा उतना अच्छा. तो हम लोग जब घर पे पढ़ाई कर रहे हैं वो माहौल और एग्ज़ाम का माहौल भी मालूम है हमको, वो अगर हम लोग जितना नज़दीक लाने की कोशिश करोगे एग्ज़ाम हॉल में उतना ही आपका टाइम बचेगा. 10 मिनट्स भी आपका टाइम सेव हो गया, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एक्स्ट्रा, 3 मार्क्स मिल जाएंगे. 39 will become 43, 49 will become 53, 59 will become 63. इसका बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स. एक मार्क्स के लिए फाइट करना है फ्रेंड्स. मार्च चला गया, फेब गया, मार्च गया, ऑलमोस्ट 12 तारीख है. मेरे हिसाब से महीना स्टार्ट होता है तो ख़त्म हो गया, तो मार्च भी गया. अप्रैल एंड मई, we have only 2 months in our hands. जब हमने स्टडी शुरू कर लिया था तब लग रहा था अभी 4 महीने बाकी, 5 महीने बाकी. आपको पता भी नहीं चला 2 महीने खत्म हो गए, 2-2.5 महीने खत्म हो गए. ओनली 2 months आर इन योर हैंड. एंड इन दिस 2 months कितना पढ़ाई करना है. सो व्हेन यू आर स्टडिंग, स्टडी लाइक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. मैंने बहुत बार बताया है the difference between student and professional students. सॉरी इसमें थोड़ा टाइम जाता है, बट ये जाता है तो अच्छी बात है. एक बंदे को भी बेनिफिट हो गए तो बेनिफिट हो गए. किसी को लगता है कि आता है ठीक है, थिंग्स हैपन्स, बट विद इन 30+20 50 पीपल्स में 2 बंदे भी अगर इसका बेनिफिट हो गए तो भी ये वर्ड्स का बेनिफिट है. वी आर हैविंग ओनली 2 months. 2-3 महीने तो चले गए ऐसे बात करते करते. हम तो बेसिक से अभी साइकिल से हम बाइक पे बैठने वाले हैं अभी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से. कार में तो गए भी नहीं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में. वैसा ही एप्लीकेशन रहता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम एप्लीकेशन है. आपको पता नहीं चलेगा कब एग्जामिनेशन आ रहा है. एंड देन अगेन सेम स्टोरी हैपन्स. मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, सेम स्टोरी विल हैपन. आप कितने बार भी अटेम्प्ट दोगे तो सेम थिंग विल हैपन, नथिंग विल चेंज. सो व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे इज टुमारो इज एग्जाम. व्हाट वी आर राइटिंग सॉल्विंग टुडे इज द क्वेश्चन एग्जाम आंसर शीट. हाउ मच टाइम वी आर स्टडिंग डजंट मैटर एट ऑल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अगर इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रहा है तो 10 घंटे का कोई मतलब नहीं, जीरो, नो वैल्यू. हाउ मच यू आर इफेक्टिवली स्टडिंग. एंड इफेक्टिव स्टडी कौन कितना हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने को मालूम रहता है. नाइदर पेरेंट्स नॉर फ्रेंड, नथिंग. हम खुद अपना खुद का असेसमेंट करना है. एंड यू कैन फुल 100 ऑफ पीपल्स. सबको फुल कर सकते हो लेकिन खुद को कभी फुल नहीं कर सकते. सॉरी टू लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं ये हो गया, डाइवर्ट हो रहा है. बट वी कैन फुल ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड अस बट नॉट फॉर आवर सेल्फ. ये एक स्टेटमेंट याद रखो बस, ठीक है. एनीवे लेट्स मूव टू द बेसिक थिंग्स. 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट का लेबर आवर रेट फाइंड आउट करना है. लेबर आवर रेट्स वी हैव टू फाइंड इट. सो हाउ मच वेजेस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में कितना वेज पे किया है डिपार्टमेंट ए के लिए दिया है. देखो 5,000, 6,000 एंड 4,000. 5,000, 6,000 एंड 4,000. बराबर. रुपीज में वेजेस पेड इन प्रीवियस ईयर रुपीज में. रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर रुपीज में ही है. कितना है वेज रेट पर आवर? 0.25. एग्रीड. सबके लिए 0.25 है ना, सबके लिए 0.25 वेज रेट है.
So number of hours, number of labor hours कितने अभी एक आवर के लिए देखो, एक आवर के लिए 25 पैसे कर रहे हैं पेमेंट, तो 5000 आवर्स के लिए कितना पेमेंट करेंगे? एक आवर के लिए 25 पैसा है, 5000 आवर्स के लिए कितना? 5000 इंटू ना सॉरी फॉर 1 आवर 25 पैसा है, फॉर 5000 रुपीज है तो हाउ मेनी आवर्स? फॉर 1 आवर, चलो यहाँ पे लिखता, फॉर 1 आवर अमाउंट पेड कितना है? ₹25. सो ₹25 5000 अगर मैं पेमेंट किया है तो कितने घंटे काम किया रहेगा? बराबर ना? Yes or no? We are finding out number of labor hours. So it is as simple as it is 5000 divided by 0.25, 20,000 hours. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, 5000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, 20,000 hours. So यहाँ पे भी 6000 divided by 0.25 and 4000 divided by 0.25. So नंबर ऑफ लेबर आवर्स कितना है? 20,000. दिस इन आवर्स, ये रुपीज में था, ये रुपीज पर आवर था, एंड ये नंबर ऑफ लेबर आवर्स. अंडरस्टूड पक्का? यस और नो? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते, क्रॉस कर सकते. देखो 20,000 आवर्स इंटू ये आ गए, रेट कितना है? 0.25. सो कितना होना चाहिए उसको पेमेंट? 5000 रुपये मिलना चाहिए, मिल गया 5000, मैच हो गए. सो किसी को अगर क्रॉस चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं. Now factory overheads during previous year रुपीज में कितना है? प्रीवियस ईयर में फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो यहाँ पे 2500, 4000, 1000, 2500, 4000, 1000. So labor hour rate, factory overheads, labor hour rate. Now factory overheads. पर लेबर आवर, फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स. किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ लेबर आवर्स. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स 2500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स 20,000. अंडरस्टूड? पक्का? अंडरस्टूड और नॉट? कुणाल नहीं समजलंय? Who has not understood this? Online friends understood? ऑनलाइन फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. अरे मैं जो बोला इसको उसको इतना सीरियसली मत लो, ठीक है? जो बोला इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. एंजॉय करो आप पढ़ाई को. तो कभी कभी आ जाता है ऐसे मुँह, क्योंकि उतना पेन करके हम लोग भी आगे गए हैं ना. वो सीरियसनेस जगाने के लिए ये सब चीज़ें बोलना पड़ता है. आवाज़ बंद मत करो लेकिन फिर इतना. ऑनलाइन फ्रेंड्स अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Understood, sir. ओके. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो अभी इसके कितने 10 आवर्स है. रेट कितना आ रहा है इसका? 0.125. बराबर? कहाँ से लिया हमने? ये रेट ले लिया. बराबर ओवरहेड्स का. सो 10 आवर्स इंटू 0.125, ₹1.25. दूसरा 4 आवर्स इंटू 0.167. कहाँ से लिया? डिपार्टमेंट बी, दिस वन. सो 4 इंटू 0.1, so 66.67 rupees. एंड लास्ट वन कितना है? 0.0625.
is equal to 8 into 0.0625, 50 paise. So how much is the factory overheads? 2.4742, 2.42. बराबर? Yes or no? So we will get what? Factory cost. We will get factory cost कितना? 17.5 plus this. 20 रुपये आ गया तुम्हारा factory cost. Office overhead is 0. 0. So your cost of production is 20. Selling and distribution overheads. Now basis previous year. Computation of selling and distribution overheads. Working note number 2. Computation of selling expenses basis previous year. So selling expenses as a percentage of cost of production, COP. Selling expenses as a percentage of cost of production. क्या फॉर्मूला बनेगा? Selling expenses बराबर divided by cost of production multiplied by 100. So how much was selling expenses previous year में? Selling cost was how much? 30,000. Cost of production was how much? 1 lakh. बराबर ना? यहाँ पे देखो ना, cost of production was 1 lakh. So into 100. So कितना परसेंटेज आता है? 30%. So add selling expenses कितना है ब्रैकेट में? 30% of COP, cost of production. So cost of production कितना है अभी मेरे पास? 20 रुपये, उसका 30% 6 रुपये. This will get total cost. हो गया टोटल कॉस्ट. देखो वो कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो आइडेंटिफाई किया था उसका कॉस्ट कितना था? 26 रुपये. कितना था उसका कॉस्ट? उसका सेलिंग प्राइस ही उसने 23.44 दिया और हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 20. अभी तो प्रॉफिट भी ऐड नहीं किया. प्रॉफिट कितना बोल रहा है प्रॉफिट ऐड करने के लिए? 33% ऑफ टोटल कॉस्ट. क्या ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट. सो ऐड प्रॉफिट कितना है? 10% ऑफ टोटल कॉस्ट. सो 26 into 10%. So our selling price will be 28 rupees. Selling price 28 rupees 60 पैसे. और उसने कितने दिया था? 23 रुपीज़. बराबर ना? ये कंपनी का तो दिवाला हो जाएगा एक ही साल में. 23 रुपीज़ 44 पैसे में उसका सेलिंग प्राइस है. एक्चुअल में 28. वो तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहा है. कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट गेटिंग रिकवर्ड. ठीक है. एनी क्वेश्चन ओवर ईयर से अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा. डोंट एक्सपेक्ट कि मटेरियल लेबर ओवरहेड जैसे प्रॉब्लम चलेंगे. अभी हमको एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे. एनी क्वेश्चन ओवर ईयर? पक्का? एनी क्वेश्चन? फाउंडेशन फ्रेंड्स, मेरे फाउंडेशन फ्रेंड्स को मुझे ज़्यादा चिंता है जो फाउंडेशन से आए. तुम्ही ग्रॅज्युएटमध्ये कॉस्ट शीट बघितले? तुम्हाला नाही बघितलं अजून? ठीक है. जिन्होंने कॉस्टिंग बिल्कुल ही नहीं देखा, आई एम केयरिंग फॉर देम. अंडरस्टूड ना? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स, शुड वी मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन? Yes, sir. चलो. ज़्यादा हैवी डोज हो रहा है क्या? हाँ
ग्रुप 2 से तो बहुत आसान है यार कॉस्टिंग, ग्रुप 1 का है कि नहीं? ग्रुप 2 में तो हालत खराब थी ना, और ऊपर से बेसिक भी क्लियर नहीं था। जिसका ग्रुप 1 का बेसिक क्लियर है उसको ग्रुप 2 का कॉस्टिंग आसान जाता है, सीधा डायरेक्ट ग्रुप 2 में डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। जिसने अभी मैंने लास्ट टाइम आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो पाया, इसलिए मैं बोला ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। ग्रुप 1 दे के फिर अगर ग्रुप 2 का कॉस्टिंग अगर पढ़ते, ग्रुप 1 का कॉस्टिंग का स्टडी करके फिर ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का प्रिपरेशन करते तो काफ़ी, अभी आपको ग्रुप 2 काफ़ी आसान लगना शुरू हो जाएगा, और ग्रुप 1 का भी बेसिक से क्लियर हो रहा है, एंड यू नो व्हाट इज देयर, आगे चल के क्या है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या है, यू नो इट वेरी क्लियरली। सो ग्रुप 1 का टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जिसने ग्रुप 2 प्रिपरेशन किया है उसके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो। सो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करने के बाद ग्रुप 1 इज कंप्लीटेड। ग्रुप 2 ने जिसका ग्रुप 2 का प्रिपरेशन हो चुका है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ग्रुप 1 ग्रुप 2। चलो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। A work order for 100 units of a commodity has to pass through 4 different machines, of which the machine hour rate is given. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वो अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। हम जॉब कॉस्ट शीट कर रहे हैं, एक जॉब बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है, दैट वी आर ट्राइंग टू डू। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक जॉब था 9669, ये जॉब के लिए मुझे कितना खर्चा आने वाला है वो आइडेंटिफाई किया था। प्रीवियस ईयर बेस था उसका, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कचरा भर पड़ा है, उसका बेस लिया एंड ये जॉब कॉस्ट शीट बना दी। अब मटेरियल वाज अवेलेबल, लेबर वाज अवेलेबल, ओनली एप्लीकेशन करना था ओवरहेड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स खत्म हो गया था, वो बेस लेना था। ये प्रीवियस ईयर का बेस लेके प्रीवियस ईयर का बेस ले लिया। इन द सेम वे ईच एंड एवरी जॉब का अगर कॉस्ट शीट करना है तो ईच एंड एवरी जॉब विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, दैट इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग, एक जॉब का अलग। गॉट इट? ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो बाइक का सर्विसिंग के लिए, ईच जॉब इज डिफरेंट, बराबर ना। इसके जॉब, इसका बाइक का सर्विसिंग करने के लिए जाएगा 5000 रुपया खर्चा आएगा, इसके जॉब के लिए बाइक का खर्चे के लिए 3000 है, मे बी मटेरियल इसका ज़्यादा चेंज लग गया होगा, ऑल दोज थिंग्स करना पड़ेगा ना। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अब ये जॉब दूसरा, द वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एक वर्क ऑर्डर है जिसमें 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज टू पास थ्रू डिफरेंट मशीन्स, ऑफ विच मशीन आर रेट आर एज बिलो। मशीन आर रेट है मशीन P, मशीन Q, मशीन R एंड मशीन S। सो एक जॉब 4 मशीन थ्रू जाता है एंड देन जॉब बन जाता है उसका। क्लियर? हाँ या ना? यस। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर। मटेरियल 8000 का है, वेजेस 500 का है। मशीन P हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स, मशीन Q 160 आवर्स, 240, S 132 आवर्स। After the work order has been completed, material worth rupees 400 were found to be surplus and are returned to stores. Office overheads used to be 40% of works cost, but on account of all-round rise in the cost of administration and distribution, there has been 50% rise in office overhead expenditure. Moreover, it is known that 10% of production will have to be scrapped as not being used for specification, and sale proceed of the scrapped output will be 5% of cost of sales. If the manufacturer wants to make a profit of 20% on total cost of work order, find out the selling price of the unit commodity ready for sale. चलो simple question से read it twice. And I am telling you again and again, be a professional students. समझ में नहीं आया तो वहीं पे हैंड रेज करके क्लियर कर लो. डोंट कैरी प्रॉब्लम्स एट होम. घर में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है दूसरे सब्जेक्ट्स के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है. लेट दैट प्रॉब्लम यूज टाइम, स्पेंड टाइम फॉर दोज प्रॉब्लम्स. कॉस्टिंग के लिए घर पे मत लेके जाओ कुछ भी, यहीं पे सॉल्व कर दो जितना हो सके उतना.
चलो ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जॉब नंबर कुछ है क्या? फॉर वर्क ऑर्डर, फॉर वर्क ऑर्डर. मटेरियल कितना यूज किया? डायरेक्ट मटेरियल है 8000. इनर कॉलम में 8000. कुछ रिटर्न भी किया है, बराबर ना? सी फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड फॉर मटेरियल. मटेरियल कितना है? 8000. और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया. आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड मटेरियल वर्थ ₹400 वाज फाउंड टू बी सरप्लस एंड रिटर्न टू स्टोर्स. अब रिटर्न कर दिया तो ये मटेरियल में जाना जाएगा क्या? नहीं. लेस मटेरियल रिटर्न, लेस मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स. कितना है? 400 रुपये. सो आउटसाइड मटेरियल विल बी 8000 minus 4000, 7600. डन. डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है? वेजेस इज 500. कुछ एडजस्टमेंट है इस पे? एडजस्टमेंट है कुछ इस पे? नहीं ना. सो 500. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है? प्राइम कॉस्ट. देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिखने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट लिख देंगे. 8100 इज द प्राइम कॉस्ट. डन. ओके. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. एड फैक्ट्री. नाम क्या यूज किया है उन्होंने? वर्क्स या फैक्ट्री? ठीक है. ऑफिस ओवरहेड्स, फॉलोइंग वर्क करना. ठीक है. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओवरहेड्स कितने फैक्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें? मशीन P, Q, R एंड S. मशीन P, Q, R एंड S. ठीक है. मशीन P में कितने आवर्स काम करते हैं? देखो मशीन P हैज एंगेज फॉर 200 आवर्स, बराबर. सो 200 आवर्स. और मशीन आर रेट कितना है इसका? मशीन P का देखो यहाँ पे थी. मशीन P पर आवर रेट दी हैज बीन गिवन 1.12. जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या किया था? वर्कआउट किया था. यहाँ पे उन्होंने डिराइव करके दिया था. 1.25 है ना. सो 200 इंटू 1.25, बराबर 250 रुपीज. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मशीन P Q में कितने आवर्स, कितने घंटे काम करते हैं? 160 आवर्स. रेट कितना है? 2.5. सो 160 इंटू 2.5 कितना है? 160 इंटू 2.5 400. नेक्स्ट मशीन R 240 इंटू 3, बराबर ना. 240 इंटू 3, 240 इंटू 3 720. एंड मशीन S 132 इंटू 2.25, 132 इंटू 2.25, 132 इंटू 2.25, 297. So our factory overheads is 1667. This will give us works cost. कितना है वर्क्स कॉस्ट? 9767. Done? Any question till here? Online friends? Online friends, no query. चलो. Add office overheads. कितना है ऑफिस ओवरहेड्स? से ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ठीक है. सो ऑफिस ओवरहेड्स हम लोग अगर डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग.
हम लोग 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोल रहे हैं ना, वर्क्स कॉस्ट। ये ऐसा इतना देता तो थिंग्स वर सो इजी। सो वर्क्स कॉस्ट कितना है 9767 इंटू 40%, ये आंसर लेके आगे चल जाते, बट उन्होंने ऐसा नहीं दिया है। व्हाट दे आर सेइंग, ऑफिस ओवरहेड यूज्ड टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज बिन 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। सो ऑफिस ओवरहेड्स पहले कितना था 40% अर्लियर, बराबर। इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज 50%, ओके। सो 40% इंटू 50% कितना हो गया, रिवाइज्ड ऑफिस ओवरहेड्स, रिवाइज्ड ओवरहेड्स कितना है 60% of works cost. So works cost into 60%. Understood? Everybody understood or not? 60% कैसे निकाला? 60% कैसे निकाला सबको पता चल गया क्या? नहीं, पहिले किती होते 40% होते, बरोबर 40% होते, त्याच्यात 50% ऍड केले ना, 40% इंटू 50% किती झाले, 20% वाढ झाली, टोटल रिवाइज किती झाले 60%। नाही कळलं अजून पण, नहीं यहाँ पे लास्ट ऑनलाइन तो कुछ जवाब नहीं देता, ठीक है। 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, शुड आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अभी आगे क्या बोलता है देखो, मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एज नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड सेल प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप आउटपुट विल बी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ वो जो बोल रहा है तुम्हारा 10% जो है कॉस्ट, यहाँ पे अभी अपना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, लेकिन उन्होंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है क्या कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 15,600। व्हाट ही इज सेइंग, सी इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल बी स्क्रैप्ड। तो स्क्रैप कितना होने वाला है, स्क्रैप जस्ट ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, जस्ट स्क्रैप कितना होने वाला है, कॉस्ट सीओपी कितना है अपना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 15,627, एग्रीड। इसमें से स्क्रैप कितना होने वाला है, स्क्रैप 10%, बराबर। तो 15,627 में से का 10% विल बी स्क्रैप, कितना स्क्रैप वैल्यू है 1,56263। समझ में आया ये, यहाँ तक समझ में, डोंट राइट एनीथिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 15,000, उसमें से कुछ स्क्रैप होने वाला है कितना 10%, तो हमने 10% स्क्रैप कर दिया ना। ये स्क्रैप का वैल्यू कितना है, सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप विल बी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप कितना है 1563 इंटू 5%, सो 78 रुपीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है। चलो मैं बोलता हूँ अभी आपको, मैंने पूरा खर्चा किया, मेरा खर्चा हो गया 1000 रुपये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा 1000 रुपये, उसमें से क्या बोला मैं 10% मेरा स्क्रैप होने वाला है। सो 1000 में से 10% कितना होता है, 10% 100। 1000 रुपये का खर्चा किया था, इसमें से कितना स्क्रैप होने वाला है 10%, ठीक है। 100 रुपीज़ का स्क्रैप होने वाला है। अब ये स्क्रैप हो गया, इसका रियलाइजेबल वैल्यू 100 रुपीज़ रहेगा क्या, स्क्रैप का वैल्यू रियलाइजेबल 100 रहेगा क्या, नहीं। वो क्या बोल रहा है कि 5% ही मुझे उसमें से रियलाइज हो जाएगा, मतलब 100 रुपये का मटेरियल मेरा खराब हो चुका है, मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उसका 5 रुपये मिलने वाला है मुझे, तो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू इज हाउ मच, ओनली 5%, 5 रुपये। इन द केस नाउ, इन दिस केस कमिंग टू दिस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच 15,627, एग्रीड।
उसमें से स्क्रैप होने वाला है कितना, 10% स्क्रैप होने वाला है. स्क्रैप वैल्यू इज हाउ मच. लेकिन ये इतना मार्केट में बेचने जाओगे तो मुझे 1563 रुपीज आएगा क्या? नहीं. आई विल सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज हाउ मच? 5%. 5%. सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज हाउ मच? 5%. तो ये स्क्रैप था, इसका 5% ले लिया. कितना है? 17.14. नाउ दिस विल बी लेस सेल realization from less realization of scrap sale, realization or recovery from scrap sale. scrap sale करेंगे तो पैसा आएगा ना, -78.14. रियलाइजेशन रिकवरी हो जाएगा, बराबर ना? पक्का? Understood or not? So net cost of production, net cost of production, net cost of production 15,549.06. और टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं इसमें, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस कुछ नहीं है ना, टोटल कॉस्ट भी बोल दो इसको. टोटल कॉस्ट 15,549. डन? यस और नो? आवाज नहीं. यस. सो ऐड प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट ऐड करने के लिए बोला? 20% ऑन टोटल कॉस्ट. 15,549 इंटू 20%. सो ऐड प्रॉफिट 20% ऑफ 15,549. So this will come your selling price. Sales. And now sales per unit. Per unit. कितने यूनिट्स थे यहाँ पे? 100. बराबर याद रख लिया. तो 18,659 divided by 100. 187 rupees. 186.59. Any question? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं आप लोगों को कॉस्टिंग? मजा नहीं आ रहा है? Who is not enjoying? Say very frankly. I will have some other way of technique for him, one to one. किसको कोई कॉस्टिंग एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ऐसा कोई है बंदा? He is not able to enjoy the costing subject. Anybody? इतना फ्री ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, समझ में नहीं आ रहा तो मैं अलग तरीके से बताता हूं. मीन्स एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? गुड. अरे एवरीबडी में तू अकेला नहीं आता है. हाँ तो ओके चलो गुड. बट एनर्जेटिक है तो सेम आंसर आ रहा है इनका. चलो नेक्स्ट illustration number 3. Read the question now. चलो क्वेश्चन रीड करते हैं. The data pertaining to Heavy Engineering Limited are as follows. At the end of 31st March 22, direct material, direct wages, selling, distribution overheads, administrative overheads, factory overheads and profit. ठीक है. Prepare the cost sheet showing all the details. तो इसका cost sheet बना देंगे, no problem. B part. ये था. This information was for FY22. For FY23, 22-23, the factory has received a work order. It is estimated that direct material would be 12 lakhs, direct labor 7,50,000. What would be the price of work order? If factory overheads earns the same rate of profit on sales, assuming that selling and distribution overhead has gone by 15%, factory recovers factory overhead as a percentage of direct wages, administrative and selling distribution overhead as percentage of works cost, based on the cost rates prevalent in previous year.
सो अगर देखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको बनाने के लिए आना चाहिए अभी, ठीक है। फिर भी रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, देन वी विल सॉल्व इट। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना प्लीज। नाउ दिस इज द स्पॉट वेयर यू पीपल विल अंडरस्टैंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड जॉब कॉस्टिंग वेरी वेल, प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, इसलिए रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। चलो, सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से नाउ। ये समर सीजन में एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना, यही प्रॉब्लम है आप लोगों का, मुझे मालूम है। नहीं तो पढ़ाई अच्छा करते हो आप लोग, बट सीजन बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं समर में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो हमको 2 स्टेटमेंट ऑफ करना है, कॉस्ट करना है, एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का और उसका बेस लेके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बनाना है, ठीक है। पहले तो 21-22 का बनाते, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर FY 2022, बराबर ना। चलो बना दिया हमने। रीड कर लिया क्वेश्चन आपने 2 बार, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं फिर अभी 21। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 9 lakhs, डायरेक्ट मटेरियल 9 lakhs, डायरेक्ट मटेरियल 9 lakhs। डायरेक्ट वेजेस कितना है 7,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, नहीं है, सो ठीक है। प्राइम कॉस्ट, this will be a prime cost, prime cost, prime cost 16,50,000। add factory overheads, overheads कितना factory overheads, see factory overheads is 4,50,000, factory overheads 4,50,000। this will give us factory cost or works cost, वर्क्स कॉस्ट कितना है, वर्क्स कॉस्ट 21 lakhs। एड एडमिन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 4,20,000, 4,20,000। this will give us cost of production कितना है 25,20,000। add selling and distribution overheads, selling and distribution overheads कितना है
selling and distribution 5,25,000. This will become our total cost, बरोबर ना? Total cost 30,45,000. Add profit, कितना profit? 6,09,000. So sales is how much? 36,54,000 sales. So easy it was. था ना easy? Okay. Now basis this, we have to prepare statement of cost for FY23. FY23 के लिए भी हमको statement of cost करना है. Done? Chalo. Should we start? For 23 factory has received a work order. For 23? For 23 work order. FY23 work order. It is estimated that direct material would be 12 lakhs. Direct material कितना है? Material 12 lakhs. Direct wages कितना है? कितना होने वाला है? 7 लाख would be, and direct labor 7,50,000. So prime cost कितना रहेगा? Prime cost will be 19,50,000. Add factory overheads. Now factory overheads के लिए क्या बोल रहा है देखो. Say now understand, एक करते. What would be the price of work order if the factory intends to earn the same rate of profit on sales? Assuming that the selling and distribution overheads has gone up by 15%. Selling and distribution overheads, ये जो selling है वो increase हुआ है 15%. वो बाद में देखेंगे. The factory recovers factory overhead as a percentage of direct wages. ठीक है? So working note number 1. Working note number 1. Computation of factory overheads as a percentage of direct wages. ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स. किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं? डायरेक्ट वेजेस. और वो है परसेंटेज में, बराबर ना? इनटू 100. बराबर? ओके. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था हमारा? बेस पीरियड में, बेस पीरियड लेना है 4,50,000, बराबर? वेजेस कितना है बेस पीरियड में? 7,50,000. ये बेस पीरियड का परसेंटेज लेते समय ये बेस पीरियड लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो कितना परसेंट बनता है? 60%. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पे आता है. फैक्ट्री ओवरहेड्स 60% ऑफ किस पे? दिस 7,50,000. डायरेक्ट वेजेस कितना है यहाँ पे? 7,50,000 ऑफ 7,50,000. सो 7,50,000 इंटू 60%. देखो अभी ये दोनों भी सेम है इसलिए आंसर सेम आएगा अपना. बट यहाँ पे अगर 8 लाख रहता तो 8 लाख का 75% है, 60% लेते. अंडरस्टूड ना? ये स्टेट में परसेंटेज डिराइव करने के लिए बेस पीरियड यूज किया और एप्लीकेशन करते समय उसका खुद का पीरियड कर लेना है. इथं दोन्ही ठिकाणी 7.5 लाख आहे. नाही तुम्हाला असं वाटेल 7.5 लाख रुपये इथले नाही घेतले,
ये जर 8 लाख रुपये असते, फॉर जस्ट आय एम मेकिंग दिस एज 8 lakh रुपीज जस्ट फॉर चेंज, सो दिस वुड बी 65 lakhs ऑफ 8 lakhs. So, ये इंफॉर्मेशन बनता है. ये 7.5 लाख के बेसिस पे हमने परसेंटेज निकाला. बेस पीरियड इज ओनली फॉर डेरिवेशन ऑफ रेट्स, ओवरहेड रेट्स का डेरिवेशन करने के लिए. अभी यहाँ पे कितना है? 7.5 लाख. डन. दिस विल बिकम वर्क्स कॉस्ट. 24 लाख रुपए बन गए तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट. यस और नो? एड एडमिन ओवरहेड्स. कितना एडमिन ओवरहेड्स? एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. सो वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ एडमिन ओवरहेड परसेंटेज एज परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. सो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं. क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एडमिन ओवरहेड्स. बराबर ना? एडमिन ओवरहेड्स किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं? वर्क्स कॉस्ट पे. एंड परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100. मल्टीप्लाइड बाय. नाउ बेस पीरियड में एडमिन ओवरहेड्स कितना है? 4,20,000. 4,20,000 डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट कितना है? 21 lakhs इंटू 100. कितना परसेंटेज बनता है भाई? 20% है. 20% है. सो ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना आएगा ब्रैकेट में? 20% ऑफ कितना? 24 lakhs. वर्क्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 24 lakhs. सो 24 ऑफ 24 lakhs. 24 lakhs इंटू 20%. 28,80,000. Done. This will become our cost of production. Add selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. Now selling and distribution overheads किस पे find out किए? Selling overheads is also added to on the works cost पे ही बना है. So working note number 3. Working note number 3. Computation of selling overheads as a percentage of works cost. Formula बनेगा selling overheads divided by works cost into 100. selling overheads कितना था बेस पीरियड में? 5,25,000 divided by 21 lakhs into 100. कितना परसेंटेज बनता है? 25%. तो यहाँ पे ठीक है, ये 25%. लेकिन उन्होंने क्या बोला है? सिंस एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज्ड, ओवरहेड्स हैज इंक्रीज्ड बाय 15. देखो, assuming that selling and distribution overheads has gone up by 15%. So add increase in overhead rate. कितने रेट से इंक्रीज हो गया? 15%. So revised rate is how much? 15 plus 40%. Revised rates is how much? 40%. So selling and distribution overheads 40% of 24 lakhs. बराबर ना? 24 lakhs was works cost. उसका 40%. 9,60,000. This will give us total cost. This will give us total cost 38,40,000. Add profit sales. प्रॉफिट कितना बोला है उन्होंने? समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टूड? पक्का? लास्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होता है. प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, इंक्रीज द प्रैक्टिस. घर पे जाके फिर से ये प्रॉब्लम सॉल्व लगा. एक ही करना है. जो प्रॉब्लम यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया प्रॉपरली, उसको घर पे जाके एक बार सॉल्व करना है, बस खत्म. ज़्यादा
वरी नहीं करना है. नाउ प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो? What would be the price of work order if the factory intend to same rate of profit on sales? Now again working note number next, fourth, computation of profit as a percentage of sales. Profit as a percentage of sales. बराबर ना? सेल्स पे कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट. किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं? सेल्स पे. मल्टीप्लाइड बाय 100. परसेंटेज पे इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100. सो कितना प्रॉफिट था हमारा लास्ट टाइम? 6 lakhs. बेस पीरियड का 6 lakhs 9,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना था? 36 lakhs 54,000 इंटू 100. कितना है वो? 16.66%. 16.67%. ठीक है. अभी सेल्स कितना है हमको मालूम नहीं है, इस पे 16.66% लेना है. सो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट. Computation of profit for computation of profit for FY23. Profit is how much? Profit is 16.67% of sales. बराबर ना? एग्रीड? यहाँ पे निकाला ना हमने. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. एग्रीड? अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा? 66.67 प्लस 16.67. बराबर. कुछ गलती कर दिया क्या? 63 है क्या? 83 रहेगा क्या ये? 66.83. ठीक है. 83.33. सॉरी 83.33. सॉरी 83.33. ये इसके मिला के मेरा 100 हो जाता है. ठीक है. अंडरस्टूड? पक्का? कल इस पे हमें कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व. यस और नो? चलो देन थिंग्स आर सो इजी. if my CP is 83.33, प्रॉफिट कितना है? नहीं, प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट, हाँ. प्रॉफिट इज हाउ मच? प्रॉफिट इज 16.67. इफ माई CP इज कितना है? 38 lakhs है ना? 38 lakhs 40,000. बराबर ना? 38 lakh 40,000. So what will be my profit? Profit is how much? Profit is how much? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है? करते? 38 lakhs 40,000 into 16 point divided by 83.7,68,000. राउंड अप कर लो आप. हाँ, आपका जो राउंड अप करके आया रहेगा. मैंने यहाँ पे एनीवे एक्सेल शीट में तो थोड़ा सा आसान जाता है करने के लिए. आपका थोड़ा बहुत राउंड अप. तो हाउ मच इज योर सेल्स? 46,08,000. देखो उस पर परसेंटेज कितना आता है? 67.66 आता है कि नहीं? चेक कर लेते हैं. 16.667% आ गया ना? उतना ही आ गया ना यहाँ पे जो डिराइव किया था. ठीक है. एनीवे next illustration number 4.
ये समझ में आ गया सबको? अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आने लगे आप लोगों को. इलिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट 4 इज फॉर होमवर्क. और कल यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ बुक्स. चलेगा? पक्का? That's it. Let's stop. Online friends, thank you.